ان کی گاڑی گیٹ سے نکل ہی رہی تھی جب چشم خان کی گاڑی قریب آ کر رکی۔ بختیور کہاں جا رہی ہو؟ لائبہ نے اونچی آواز سے پوچھا، لیکن اس وقت بختیور کو کچھ بھی نہیں اچھا لگ رہا تھا۔ وہ لائبہ پہ محض ایک تلخ نگاہ ڈال کر رہ گئی اور منیب نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ لائبہ نے چشم کو دیکھا، وہ پہلے ہی لاتعلق سا بیٹھا تھا۔ گلنین! بختیور نے گھر میں داخل ہوتے ہی گلنین کو پکارا تھا، لیکن سیڑھیوں کے ساتھ والے فرش پہ بکھرے کانچ کے ٹکڑے اور خون کے نشان دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ منیب کے قدم بھی اپنی جگہ پہ جم کے رہ گئے تھے۔ یہی سرخون سے فرش پہ پہروں کے نشان سیڑھیوں سے اوپر تک جا رہے تھے۔ گلنین! بختیور کے قدم لڑکھڑا گئے تھے۔ سنبھال کے! منیب نے اسے سہارا دیا، لیکن جس کو سہارے کی ضرورت تھی اس کو ابھی تک کسی نے سہارا نہیں دیا تھا۔ ہائے میری گلنین! بختیور نے سینہ پیٹ ڈالا تھا۔ بختیور حوصلے سے کام لو، اسے دیکھو تو صحیح، وہ کہاں ہے؟ کیا ابھی بھی دیکھنے کی ضرورت ہے؟ وہ کہاں ہے؟ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ کہاں ہے؟ بختیور یکدم چیخ اٹھی تھی۔ بختیور! بھاڑ میں گئی بختیور! وہ منیب کا ہاتھ جھٹک کر فوراً اوپر کی طرف بھاگی۔ اس کے پیروں کے نشان زہیب کے کمرے تک جا رہے تھے۔ بختیور نے دروازہ دھکیلا اور دروازہ کھلتا چلا گیا تھا۔ اندر کا حال باہر سے ہی نظر آ رہا تھا۔ بختیور کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، لیکن کیا کرتی؟ تباہ شدہ عمارت کا ملبہ بھی تو اٹھانا تھا۔ اس نے قریب آ کر کا حال دیکھا تو منہ سے دبی دبی چیخ نکل گئی تھی۔ اس خبیث حرام خور نے اسے بری طرح روندا تھا، بری طرح مجروح کیا تھا، برباد کر دیا تھا اسے۔ بختیور اس کے اوپر جھکی اور اسے کھینچ کر گلے سے لگا کر تڑپ تڑپ کر رو پڑی۔ وہ بے ہوش پڑی گلنین کو گلے لگائے دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، اور منیب اسے سنبھال رہا تھا۔ بختیور سنبھالو اپنے آپ کو، گلنین کو اس وقت ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ منیب نے سمجھداری سے کام لیا اور بختیور کے ساتھ مل کر اسے اسپتال لے گیا۔ وہ مسلسل زہیب کے نمبر پہ فون کر رہا تھا، لیکن اس کا نمبر آف تھا۔ یقیناً وہ فرار ہو چکا تھا۔ صبح کے وقت اسے ہوش آیا تھا۔ اس نے بوجھل آنکھیں کھول کر دیکھا، بختیور بیڈ کے قریب اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھی تھی، اور بختیور کے آنسو رخساروں سے بہہ رہے تھے۔ بے حس و حرکت نظریں بختیور کے چہرے پر ٹھہری ہوئی تھیں، بے تاثر اور سپاٹ۔ گلنین میری گڑیا، مجھے معاف کر دو، میں تمہاری مجرم ہوں، میری وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر جاتی نہ یہ سب ہوتا۔ بختیور اس کے ہاتھ تھامے رو پڑی تھی۔ میں نے تمہیں اپنے گھر لا کر بہت بڑی غلطی کی تھی۔ تم چشم بھائی کے گھر رہتی تو یہ سب نہ ہوتا، تمہاری عزت تو محفوظ رہتی، چاہے لائبہ بھابھی کچھ بھی کہتی رہتی۔ بختیور ہچکیوں سے رو رہی تھی، اور گلنین بے ساکھ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ بولو گلنین، خدا کے لیے کچھ تو کہو۔ بختیور نے اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ نرس اندر داخل ہوئی تو بختیور کی حرکت دیکھ کر سختی سے بولی تھی، یہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ بختیور کی اپنی حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ رات سے مسلسل اس کے سرہانے بیٹھی رو رہی تھی، اور اب اسے گلنین کی چپ مار رہی تھی۔ ابھی وہ ریلیکس نہیں ہے، ابھی تو ہوش میں آئی ہیں، تھوڑی دیر صبر کیجیے، وہ بات بھی کر لے گی۔ نرس نے اسے تسلی دی اور گلنین کا بی پی چیک کرنے لگی، پھر اسے ایک انجیکشن دے کر چلی گئی۔ دوپہر 12 بجے کے قریب ڈاکٹر نے اسے ڈسچارج کر دیا۔ میں گاڑی نکالتا ہوں تو مجھ سے لے کر پارکنگ تک آ جاؤ، منیب کہہ کر باہر نکل گیا تھا۔ چلو گلنین گھر چلو، بختیور نے اسے اس کا دوپٹہ درست کرتے ہوئے کہا۔ گھر؟ گلنین نے پتھرائی ہوئی سپاٹ نظروں سے دیکھ کر پوچھا۔ کیا اب کسی تیسرے گھر جانا ہوگا مجھے؟ 2 گھروں سے تو بہت فیض پا لیا میں نے۔ اس کا سوال بختیور کا کلیجہ چیر گیا تھا۔ وہ تڑپ گئی تھی۔ ایسا نہ کہو میری گڑیا، میرا دل پھٹ رہا ہے۔ اس نے گلنین کی پیشانی چوم لی۔ آپ مجھے اتنا بتا دیں، اب میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ لبو لے جاؤ انداز اب بھی سپاٹ ہی تھا۔ میں تمہیں واپس چشم بھائی کے گھر چھوڑنے جا رہی ہوں۔ ایم سوری، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکی، تم ان کی ذمہ داری ہو، وہ اپنی ذمہ داری سنبھال لیں گے۔ انہوں نے تمہیں دانش سے بھی بچا لیا تھا، وہ تمہیں زہیب سے بھی بچا سکتے تھے اگر تم ان کے پاس ہوتی، بس میں ہی کچھ نہ کر سکی۔ بختیور نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی، لیکن گلنین کے ذہن میں یہی بات گردش کر رہی تھی کہ وہ اسے واپس چھوڑنے جا رہی ہے، اس دیوتا کے پاس جس کی گلنین نے پچھلے کئی برسوں سے پوجا کی تھی۔ دل ہی دل میں چاہتوں کے ہزاروں دیپ جلائے اور خود ہی بجھا دیے، لیکن کبھی کسی کو اس دیے کی لو نہیں لگنے دی تھی۔ اب بختیور اسے اسی کے پاس لے جا رہی تھی۔ وہ پہلے ہی اس پہ نظر نہیں ڈالتا تھا، اب تو وہ تھی ہی داغدار دیوتا، داغدار داسی کو بھلا کیسے قبول کر سکتا تھا؟ گلنین بختیور کو انکار بھی نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی کوئی ضد کر سکتی تھی۔ ایک بار پھر اپنا لاشا اپنے کاندھوں پہ اٹھائے، جس طرف کو کہا گیا اسی طرف چل دی۔ دیکھو گلنین، خدا کے لیے اس بات کو میری خود غرضی مت سمجھنا، لیکن اس میں ہم سب کا ہی فائدہ ہے کہ چشم بھائی کو پتہ نہ چلے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، ورنہ وہ زہیب کو قتل کر کے خود پھانسی چڑھ جائیں گے۔ پلیز گلنین، بہت نقصان ہوگا۔ بختیور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ گویا دیوتا کو پتہ نہ چلے کہ داسی داغدار ہے، چھپایا جائے، اس نے تلخی سے سوچا اور سر جھٹک دیا۔ خیر، اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی ایک داسی بھی ہے جس نے اسے دیوتا بنا رکھا ہے۔ اگر پتہ ہوتا تو شاید یوں در در بھٹکنے کے لیے تو نہ چھوڑتا۔
वो बख्तावर के साथ गाड़ी में बैठ गई। वापस आ गई, ये फिर वापस आ गई। लाइबा बख्तावर के साथ गुलनैन को ड्राइंग रूम में दाखिल होते देखकर बिदक गई थी। लाइबा, चशम ने सख्ती से कहते हुए इसे घूरा था। तो ठीक कह रही हूँ ना मैं कि दोबारा वापस क्यों आई? भाभी प्लीज़ अपना दिल नरम रखें, दिल को पत्थर ना बनाएं, वरना यही पत्थर आपकी ज़िंदगी के आईने में दरार डाल देगा। बख्तावर बामुश्किल ज़ब्त करते हुए बोली थी। ओह, तो अब तुम मुझे बद्दुआएं देने लगी हो? लाइबा का रिएक्शन खासन जाहिल औरतों जैसा था। मैं आपको ये बता रही हूँ कि प्लीज़ किसी दुखे दिल की बद्दुआ से डरें। दुखा दिल, वो भी इसका जो दूसरों के दिल दुखाती फिर रही है। लाइबा अपनी ज़बान बंद रखो, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। चशम अपनी जगह से खड़ा हो गया था और लाइबा हूँ करके फुंकारती हुई एक सुलगती सी नज़रें लाइबा पर डालकर वहाँ से हट गई थी। चशम अपनी जगह से खड़ा हो गया था और लाइबा हूँ करके फुंकारती हुई एक सुलगती सी नज़र गुलनैन पर डालकर वहाँ से हट गई थी। जाओ गुलनैन, तुम अपने कमरे में जाओ। बख्तावर ने गुलनैन को मुखातिब करते हुए अपने लहजे को नॉर्मल रखा कि कहीं चशम को खटक ना जाए। गुलनैन ने दोनों बहन भाई पे एक नज़र डाली, फ़कत एक नज़र, वहाँ से उड़ गई थी, लेकिन इस एक नज़र का तीर दोनों के दिल में पेवस्त हो गया था। क्या बात है बख्तावर, गुलनैन ठीक तो है? चशम की छठी हिस्स इसे चौंका रही थी। जी, वो दरअसल इसे बुखार था, इसलिए इसे यहाँ ले आई हूँ। ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, ठीक हो जाएगी। बख्तावर ने बामुश्किल खुद को संभाला था। तुम लोग कल शाम को माइयों की रस्म में कहाँ चले गए थे? क्या बात थी? वो बस एक ज़रूरी काम निपटाने चले गए थे। रात भर काम निपटा रहे थे तुम लोग? कोई परेशानी वाली बात है तो बताओ मुझे। चशम खोज रहा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ अब। आप गुलनैन का ख्याल रखिएगा, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। बख्तावर कहकर वापसी के लिए पलटी। इतनी जल्दी? जी, वो बाहर मुनीब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, हमने शादी में भी जाना है। ओके, अल्लाह हाफिज़। बख्तावर जल्दी कहकर बाहर निकल गई कि कहीं वो अपना दुख चशम के सामने रोने ही ना बैठ जाए। और चशम हैरान और परेशान सोचता रह गया कि आखिर ये सारा चक्कर क्या है। मुनीब यहाँ तक आकर भी अंदर क्यों नहीं आया? बख्तावर गुलनैन को अजीब मशकूक सी हालत में छोड़कर वापस पलट गई। गुलनैन खामोशी से रोबोट की तरह अंदर चली गई। आखिर क्या हुआ था इन लोगों के दरमियान कि वो बगैर इत्तला के इसे छोड़ने आ गए? वो कितनी देर वहीं खड़ा सोचता रहा और जब रह ना सका तो गुलनैन के कमरे में चला आया। आज पहली बार वो इसके कमरे में दाखिल हुआ था, लेकिन बहुत सारी उलझन और बहुत सारे सवाल लेकर। गुलनैन ज़्यादा देर इसके सवालों से बच ना सकी। पहली बार ऐसा हुआ था कि इसके देवता ने उसकी उदासी पे गौर किया था, उसके दुख, उसकी परेशानी को समझा था, इसीलिए उसे पूछने इसके पीछे ही चला आया। और आज जब वो पूछ ही रहा था तो वो क्यों ना बताती? उसे बख्तावर की हर मिन्नत समा भूल गई थी। वो मज़ीद ज़ब्त ना कर सकी और इसके कदमों में गिरकर धाड़े मार कर रोने लगी। चशम अभी तक इसे फटी नज़रों से देख रहा था। गुलनैन, इसने नीचे झुकते हुए गुलनैन को दोनों कांधों से थाम के अपने सामने खड़ा कर लिया था, लेकिन इसका दुपट्टा नीचे फ़र्श पर ही पड़ा रह गया। वो इसके सामने बगैर दुपट्टे के खड़ी थी और चशम की नज़रें पथरा गई थीं। इसका जिस्म बेहद दागदार हो रहा था। गर्दन से नीचे तक ज़ख्मों और ख़राशों के सुर्ख निशान थे। वैसे ही सुर्ख निशान इसके 2-3 निशान इसके बाएं रुखसार पे भी थे। इसकी मजरूह हालत बहुत कुछ कह रही थी। चशम के हाथों की गिरफ्त कमज़ोर पड़ गई। ये सब क्या है? क्या हुआ है गुलनैन? देवता दासी से हाल पूछ रहा था। आपको नज़र नहीं आ रहा कि क्या हुआ है? क्या अभी भी ये बताने की गुंजाइश है कि खान बाबा की बरसों की कमाई इज़्ज़त चंद लम्हों में लुट गई? चशम खान, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि खान बाबा की गुलनैन लुट गई, बर्बाद हो गई, लवारिस इमारत पे डाका पड़ गया? इसने चशम का गिरबान पकड़ लिया था और इसे झंझोड़ते हुए चीख कर बता रही थी। चशम खान, जाओ बताओ लाइबा बीबी को, लुट गई गुलनैन। गुलनैन एक खुला बर्तन थी और आवारा कुत्ता इस बर्तन में मुँह मार गया, पलीत कर गया। अब ये बर्तन नापाक है, फेंक दो उसे, तोड़ तो घर में मत रखो, पलीत है। वो चीख कर निढाल हो गई थी और निढाल तो चशम खान भी हो गया था। खान बाबा के सामने कंधे ही नहीं, नज़रें भी झुक गई थीं। वो रोज़े क़यामत इनके सामने जाता तो किस मुँह से जाता? उन्होंने अपनी बेटी की एक जिम्मेदारी सौंपी थी उसे, और वो भी ना निभा सका। इसकी इज़्ज़त की हिफाजत भी ना कर सका। इसकी इज़्ज़त की हिफाजत जिसके लिए खान बाबा ज़रा देर के लिए घर से बाहर निकलते तो अक्सर काम अधूरा छोड़कर वापस घर भाग आते थे कि उनकी गुलनैन घर पे अकेली है। और आज वो अकेली सब कुछ लुटाई थी। बताओ चशम खान, अब मुझे किसके घर भेजना है तुमने? उसने चशम के गिरेबान को झटका दिया। इसकी आंखें लहू टपका रही थीं। अगर मुझे इस तरह बर्बाद करना था तो मुझे वापस भेज देते, मैं अकेली रह लेती। तुमसे ज़्यादा मेरी हिफाजत तो कादिर खान कर सकता था। वह अज़ियतनाक कैफियत से गुजर रही थी, इसीलिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। एक उम्र सब्र किया था, बर्दाश्त किया था और ख़ुद पे भी किया था। कभी दिल की हालत को ज़बान नहीं दी थी, सिर्फ़ इसलिए कि इसका घर आबाद और खुश रहे। मेरा इंतज़ार करो गुलनैन, वो कहकर अपना गिरेबान छुड़ाकर
कमरे से निकल गया था और गुलनैन वहीं ढह सी गई थी। ठीक 1 घंटे बाद चशम खान घर में दाखिल हुआ तो इसके साथ 4 और आदमी थे जिन्हें वो लेकर सीधा ड्राइंग रूम में आया था। बैठे मौलवी साहब, आप भी तशरीफ़ रखें, मैं अभी आता हूँ। वो इनको ड्राइंग रूम में बिठाकर बाहर निकल आया था। हमीदा, ड्राइंग रूम में चाय सर्व करो। वो किचन की तरफ जाती हमीदा को ऑर्डर देकर गुलनैन के कमरे में आया था। वो दरवाजे की आहट पे घुटनों से सर उठाकर देखने लगी। आओ मेरे साथ। चशम ने आगे बढ़ के इसका हाथ पकड़ा और इसे अपने साथ लिए तेज़ी से बाहर निकल आया था। यहाँ तक कि गुलनैन को सवाल जवाब का मौका ही नहीं मिला था और वो उसे सीधा ड्राइंग रूम में ले आया था। बैठो। इसने गुलनैन को सोफे पे बिठाया। साहब, गुलनैन मौलवी साहब और गवाहों को देखकर चकरा गई थी। निकाह शुरू कीजिए मौलवी साहब। चशम खान ने इशारा किया था और अभी वो निकाह पढ़ ही रहे थे कि हमीदा अंदर दाखिल होते ही अपनी जगह पे जम गई और ट्रे वहीं डालकर लाइबा के पास भागी थी। लाइबा बीबी गज़ब हो गया, आप लुट गई, बर्बाद हो गई। हमीदा अपना सीना पीट रही थी। लाइबा बशर को सुला रही थी। हमीदा की आवाज़ पे छिटक गई, ऐसी कौन सी कयामत आ गई लाइबा बीबी? वो साहब गुलनैन के साथ, और कर भी क्या सकते हैं, लेकिन अब की बार ऐसा घर से निकालूंगी कि पलट कर कभी वापस नहीं आएगी। जलील कमीनी। लाइबा दबे लहजे में हरा रही थी। लाइबा बीबी, अब वो कहीं नहीं जाएगी, आप बाहर निकल कर देखें तो सही, हमीदा ने मुश्किल से कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? साहब निकाह कर रहे हैं उसके साथ, उसने बम फोड़ ही दिया था। लाइबा का क्या इतना बुलंद था कि बशर सोते सोते भी नींद से उड़ गया था। लाइबा बाहर को भागी थी। कबूल है, गुलनैन का तीसरा और आखिरी कबूल है। इसकी समातों से टकराया था और फिर मुबारकबाद की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। लाइबा ड्राइंग रूम के दरवाजे में किसी बुत की तरह खड़ी थी। थोड़ी देर बाद वो सभी मेहमान चले गए और लाइबा अंदर आ गई। चशम, ये आपने क्या किया? बशर बुरी तरह रो रहा था लेकिन लाइबा को कुछ एहसास नहीं था। निकाह किया है मैंने, गुलनैन को अपनी बीवी का दर्जा दिया है, इस घर की मालकिन बनाया है ताकि वो आइंदा दर दर ना भटके और कोई इस पर बुरी निगाह ना डाले। वो लावारिसों जैसी ज़िंदगी गुजार रही थी। अब मैं इसका वारिस बन गया हूँ। अब मैं इसका शौहर हूँ और वो मेरी बीवी है और तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें तलाक नहीं दूंगा और ना ही इस घर से निकालूंगा। हाँ, अलबत्ता अगर तुम खुद ये घर और बच्चे छोड़कर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम यहाँ रहो या चली जाओ, इस फैसले का असली इख्तियार तुम्हारे पास होगा। तुम रहना चाहती हो तो रहो, जाना चाहती हो तो दरवाजे खुले हैं, शौक़ से जा सकती हो। चशम ने दरवाजे की सिमत इशारा किया था। लेकिन इस घर में रहना है तो इतना याद रखना कि यहाँ अब जो कुछ भी होगा गुलनैन की मर्ज़ी से होगा। इसकी मर्ज़ी के खिलाफ तुम इधर चीज़ उधर भी नहीं कर सकती। अगर कोई इल्ज़ाम तराशी की तो उठाकर बाहर फेंक दूंगा। आज ये सारी नौबत तुम्हारी वजह से आई है। इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने की ज़िम्मेदार तुम हो। तुम्हारी वजह से इसकी इज़्ज़त तबाह हो गई और आज मुझ पे फ़र्ज़ बनता है कि मैं खान बाबा की इज़्ज़त को अपना नाम दे सकूं। मैंने दे दिया। अब इस घर में जो मुकाम इसका है वो शायद तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। तुम्हारे पास 10 मिनट है, सोच लो, यहाँ से जाना है या रहना है। वो गुलनैन का हाथ पकड़कर दोबारा कमरे में आ गया था। गुलनैन खुदा की रज़ा, साकित व वसात और हैरान परेशान थी। शायद ये इसी तरह किस्मत में लिखा था और हर घड़ी लाइबा भी हैरान परेशान थी। अपनी कमअक्ली के हाथों मार खाकर अपना ही घर उजाड़ बैठी थी। अगर आपको ये नावल अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।